Good morning, student. How are you? Today we'll learn the lesson 8. Okay? Lesson number 8. Class 7. Subject English. Today we'll learn the lesson 8. Lesson number 8. The Olympic. The Olympic champion. The Olympic champion means Olympic Vijeta. The Olympic champions means Olympic champion. Children, you must be heard about the Olympic champion. Olympic champion means Vijeta. Okay. Therefore, general 3 question first we'll learn, and then after we'll learn the lesson. Okay? What games do you play? What games do you play? आप कौन से खेल खेलते हैं? What games do you play? आप कौन से गेम खेलते हैं? Some will say I play football, I play cricket, I play kabaddi, kho-kho. There are variety of games, but I play only football. मैं क्या करते? मैं फुटबॉल खेलता हूँ. Okay? Second question है, which game do you like the most? आप कौन से गेम अधिक पसंद करते हैं? अधिक पसंद करते हैं. Which game do you like the most? I like, same answer. I like football. मैं अधिक फुटबॉल पसंद करता हूँ. मैं अधिक फुटबॉल पसंद करता हूँ. ओके? अब थर्ड क्वेश्चन है, What do you know about the Olympic Games? What do you know about Olympic Games? ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या है? ओके? तुमको ये खेल के बारे में आप क्या जानते हैं? What do you know about Olympic Games? आप अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में क्या जानती हैं? अंतर्राष्ट्रीय में मीन्स द इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन के बारे में आप क्या जानती हैं? उसका मतलब है द ओलंपिक गेम्स. द ओलंपिक गेम्स आर द इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन. इसका मतलब है ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता. ओलंपिक गेम अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता. आइए चिल्ड्रन, टुडे विल लर्न द लेसन 8. द ओलंपिक चैंपियन. द ओलंपिक चैंपियन मीन्स ओलंपिक विजेता. ओके चिल्ड्रन, you must be got the idea. The general three question you learn today, and will learn the lesson about 8. Okay? When I will read, first you open your textbooks. Open your textbooks and take the lesson number 8. The Olympic champion. When I am reading, please point out your finger where I am reading. When I am reading, you will learn the meaning, line, lesson, and very nicely you will cooperate me. Okay? Now you pay attention and put your finger. I am paragraph reading, and after the paragraph I will explain. If you don't understand, please tell me. Okay? I am ready to explain. I am ready to tell you about. Okay? The Olympic Games are held once in every 4 years.
the countries and take part in the games. Many kinds of games, race and other competitions are held in the Olympic Games. Okay? ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। खिलाड़ी सभी देशों में से इन खेलों में भाग लेते हैं। बहुत प्रकार के खेल, दौड़ एवं दूसरी स्पर्धा ओलंपिक खेलों में होती है। समझ में आया कि हर जगह के, हर देशों के लोग खेल खेलने के लिए आते हैं। ये खेल 4 साल में होते हैं और इसमें बहुत से स्पर्धा खेल होते हैं और बहुत लोग इस खेल में भाग लेते हैं। We know only a few things about the ancient Olympic Games. An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC. BC means before Christ. BC means before Christ. Before Christ means ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। Before Christ means ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ओके? At Olympia, so it was called the Olympic Games. Understood, children? क्या इसमें ओलंपिक खेलों के बारे में केवल कुछ चीजें मालूम है? ओलंपिक खेल महोत्सव ग्रीक्स में 776 ईसा मसीह के जन्म के पहले पूर्व ओलंपिक हुआ था, इसलिए ये ओलंपिक खेल के नाम में जाना गया है। ओके? तीसरा There are many interesting means मनोरंजन। ओके? interesting event associated लिख के दिया है। associated संबोधित, associated with the Olympic Games. Let us share one of those events. It is about person who not only won gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928 but also won the hearts of all who saw him win. क्या है इसका मतलब? कि बहुत से मनोरंजक घटनाएं ओलंपिक खेलों में जुड़ी है। चलो उन घटनाओं से में भी याद करेंगे कि हमें कैसे व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, जिसे 1928 के ओलंपिक खेलों में व्यक्ति के बारे में बताया जाता है और केवल स्वर्ण पदक जीत बल्कि उन लोगों का दिल भी जीत जाता है उन्हें खेलों में। समझ में आया? Now, baby Price was born in Sidon in Australia. His father was a great sailing champion. When baby was 5, he was rowing around Sidon Harbour in a small boat. At the age of 6, he won the first race, competing against 14 years old. इसमें क्या समझ में आया कि बॉबी पेस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पैदा हुआ था। उसके
पिता एक मान ढोंगी चैंपियन थे, विजेता थे। जब बॉबी 5 साल के वर्ष में थे तभी सीडन के चारों तरफ एक छोटी नाव लेकर क्या कर रहे थे, चंपू चलाए करते थे। वह 6 वर्ष में उम्र के उसने पहली दौड़ 14 वर्ष तक प्रतिनिधि जीत गई। इसमें क्या हो गया, देखो कि बॉबी प्रेस ये कहाँ थे, सीडन में उनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी भी एक चैंपियन थे। जब वे 5 वर्ष के थे तभी वे सीडन के चारों तरफ छोटी सी नाव लेकर चंपू के चला करते थे। जब वे 6 वर्ष की उम्र में हो गए तब वे दौड़ने 14 वर्ष के प्रतिद्वंदी से जीते। By the time he was 20, Baby was the sailing champion of Australia. The following years, he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. जब ये 20 वर्ष के का होने के बाद बेबी ने नाव में चंपू चलाने लगे, ऑस्ट्रेलिया में का विजेता बन गए। अगले वे एम्स्टर्डम के ओलंपिक खेलों में मुकाबला करने के लिए गए। ओके, इन द फाइनल ही कंप्लीटेड अगेंस्ट केन फ्रेस of American. From the start of the race, Baby was in the lead. He was very much ahead of myself. After half race was over, he was still leading. It seemed that Baby would easily win the race. देखो, in the final he competed against Ken Miles of America. From the start of the race, Baby was in lead. He was very much ahead of Miles. After half the race was over, he was still leading. It seemed that Baby would easily win the race. फाइनल में उसका मुकाबला अमेरिका के केन माइल्स में था। नौका दौड़ में आरंभ हुआ। इस बेबी आगे था, वह माइल्स में काफी आगे था। अधिक दौड़ के बाद भी वही पहले स्थान पर था। ऐसा लगा कि बेबी आसानी से मुकाबला प्रतियोगिता में जीत खेलेगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। Then suddenly something happened. Suddenly something happened. Suddenly means अचानक। Suddenly means अचानक। फिर अचानक कुछ हुआ। कुछ हुआ मीन्स हैपन। सडनली हैपन, कुछ अचानक से हुआ। He saw a duck and her duckling swimming across the waterway. They were swimming into part of his boat, and the boat was going to run into them. The poor birds had no idea that they are in the middle of the Olympic race. देखो इस पैराग्राफ में उसने देखा कि एक बतख, डक का मतलब बतख, डकलिंग का मतलब
बच्चे। देखो बतख अपने बच्चों को लेके क्या कर रहा था, पानी में तैर रहे थे। उसी टाइम बेबी भैंस की बोट रेस में जा रही थी, तो क्या करा, पानी के बीच में अटक गई। और उसने क्या करा, जैसे बतख को देखा तो अपनी बोट धीरे कर दी। इसका मतलब है, देखो उसने देखा कि बतख और उसके बच्चे तैर रहे थे, से गुजर रहे थे। उसने नौका तेज करी और नौका को धीरे कर दिया। उसने देखा कि बेचारे पशु ओलंपिक में भी बीच में आए। Immediately baby slow down his boat myself and catching up very quickly. Then people on the bank were cheering and shouting. आवाज करे। cheering का मतलब shouting and आवाज कर रहे थे। As if they were mad, but baby waited until the ducklings का मतलब छोटे बच्चे, duckling were out of danger। danger का मतलब, डेंजर इधर एक खतरा, डेंजर का मतलब है खतरा। Then they pick up speed again and went to win the race easily। तुरंत बेबी ने अपनी नौका की गति धीमी कर दी और मैच में बहुत तेजी थी, किनारे कर खड़े कर दी और खुशी से ऐसे चिल्ला रहे कि पागल हो गए थे। वो कौन? पागल हो गए थे। Of all the Olympic champion, it was he who won everybody's heart and the newspaper were, and he won the goodwill of children of Amritsar। ओके, देखो सारे ओलंपिक विजेता में वही जिसने दिल जीता, उसका अखबार में भी लिखा। देखो जिस जो बेबी भैंस, इनकी क्या चल रही थी, नाव चल रही थी और वो बहुत तेज चल रही थी, परंतु भगवान की दया, उसने क्या करी, धीरे करी और धीरे से बोट ले गई। और जो बतख के बच्चे वो तैर रहे थे, वो क्या करे, उनको किनारे पे लेके आए और दूसरे दिन उनकी अखबार में भी क्या करी, छपा गई कि इतनी तेज से बोट चलने के बाद भी धीरे करके अपने उनको किनारे पे लेके आए। ओके, इस फ्रेंड्स in the Australia Olympic team were not surprised by the story of the duck baby on the kind of a man they said। देखो उसने मित्र जो ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक टीम थी, वो बतख की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गए। बेबी उस प्रकार की व्यक्ति को बोले। From the age of 6, baby Praise completed in the race of 33 years. He stopped taking part in the sport in 1955. In all this year, he never lost single race। देखो 6 वर्ष की आयु से बेबी प्रेस ने 36 वर्ष तक
प्रतियोगिता में भाग लिया। 1945 में उसने खेलों में भाग लिया, बंद कर दिया। इस प्रकार वर्ष के मुकाबले में नहीं हरा। देखो ये लेसन में आपको क्या समझ में आया? बेबी माइस प्रेस, बेबी माइस प्रेस ये जब 6 साल से कितने 36 ईयर में भाग ले लिया और कभी हार नहीं गई। ऐसे ये लेसन हमको भी सिखा देता है बच्चे। जब हम 5 साल से स्कूल में आते हैं और जैसे जैसे हमारे जैसे स्कूल के लाइफ में प्राइमरी, मिडिल सेक्शन, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज ऐसे हम डिग्री देखते हैं और बाद में हम बहुत अच्छे से, परंतु ये बेबी फेस ने कितना अच्छे से विजेता प्राप्त करी। ये लेसन हमको बहुत अच्छा सिखा देते कि हम कैसे स्पोर्ट में खेल सकते हैं और हम कैसे भाग ले सकते हैं कि जिस हम भाग लेते हो हम प्रतियोगिता मिल जाती है। कि देखो व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? हम ओलंपिक गेम के बारे में क्या जानते हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के बारे में क्या जानते हैं? The Olympic Games are the international sport competition. Okay? Against which विरोध? Ancient प्राचीन, associate संबोधी, एथलीट्स खिलाड़ी, BC बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, कंपटीशन प्रतियोगिता, डेंजर खतरा, डक बतख, डकलिंग बतख के बच्चे, गुडविल सद्भावना, इंटरेस्टिंग रुचिपूर्ण, सडनली अचानक, सरप्राइज आश्चर्यचकित, इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिपूर्वक। हम जब भी जो भी कार्य करते हैं, जो भी करने का जाएंगे तो इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट रुचिपूर्वक करने का है। इसीलिए बच्चे आज ये लेसन हम बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, रुचिपूर्वक करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर सब मैं तुमको दिला दूंगी और लेसन एक बार पढ़ना, स्पेलिंग और अच्छी से घर में याद करना। ओके? लेसन नंबर 8, द ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक चैंपियन मीन्स विजेता। ओके? बाय बच्चे।